गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हमने स्टार्ट किया है रैंडम टॉपिक सीरीज, जहां पे इन द लास्ट क्लास आई वाज डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट इंडियन मॉनसून। ठीक है, डिस्क्राइब द इंडियन मॉनसून। एंड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन मॉनसून वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज मॉनसून। ठीक है, एंड जो भी जितने भी टाइप के सीजन्स हैं हमारे यहाँ, that we've discussed, and in that category we've discussed about the cold weather season. ठीक है, in this lecture we are going to see हमारा जो सेकंड कैटेगरी है, that is hot weather season. ठीक है, या फिर समर सीजन के बारे में। ठीक है, तो इन द लास्ट क्लास जो कोल्ड वेदर सीजन हमने किया, आई गिव यू द बिग पिक्चर ऑफ दैट। इन दिस session we will definitely try to understand hot weather season and whatever is iska all the dimension. Definitely we will try to touch all the dimensions. ठीक है, so let's understand कि hot weather season के बारे में क्या क्या कहानी है इंडियन मॉनसून के अंदर। ठीक है, so सेम थिंग, विदाउट मैप ज्योग्राफी इज नथिंग। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ द मैप। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ मैप। ठीक है, दिस इज द इक्वेटर, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। This is 23.5 south, that is Tropic of Capricorn। और ऊपर हमारा क्या है, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, CN and CP. Okay, let me draw a map of India as well. This is India. See, in the last class we've discussed cold weather season, जहां पे India experiences what? India experiences winter season. मतलब sun was in the southern hemisphere during winter season. ठीक है, now because we are discussing hot weather season, hot, this is second, hot weather season, ठीक है, that is also summer season, summer season. Okay, so after यहाँ पे sun was by 22nd of December, sun was vertically over Tropic of Capricorn. ठीक है, as the sun progressively start marching towards the northern hemisphere. ठीक है, जैसे जैसे सन क्या होगा आपका, it will starts marching towards northern hemisphere. तो by 22nd of March या 21st of March,
sun would be over the equator resulting into equinox. कौन सा equinox? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स. दैट मीन्स व्हाट कि देयर वुड बी इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, ठीक है, एट द इक्वेटर. दैट इज व्हाट इज नोन एज इक्विनॉक्स. फर्दर एज द सन स्टार्ट्स प्रोग्रेसिवली मार्चिंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से इक्वेटर से जब ये नदर्न हेमिस्फीयर, सबसे पहले ये स्टार्ट करेगा मार्चिंग सदर्न हेमिस्फीयर से धीरे धीरे ये टिल इक्वेटर, एंड बाय 21 ऑफ मार्च, ठीक है, क्या होगा कि देयर वुड बी स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जहां पे देयर वुड बी जो लेंथ ऑफ द डे एंड द लेंथ ऑफ द नाइट वुड बी सेम, इक्वल एट इक्वेटर, और that phenomena is known as equinox. Same days, same night. ठीक है. Again, as after 21st of March, as the sun starts its northward journey, तो between April and May, what would be there? So, if you can see कि between April and May, the sun would be between the Tropic of Cancer and Equator. That means somewhere over here, and this tapering part you can see over here is the southern part of India. ठीक है. तो जैसे ही sun light is falling directly on the land, on the southern tip of what? Southern tip of India. So there would be huge amount of insolation. When there would be huge amount of insolation, that means what? Heat would be there. Heat would be there means what pressure? Low pressure system. ठीक है, low pressure system. So by April or May, India starts becoming low pressure system. क्यों? क्योंकि sun is directly falling to this region. Sun is directly falling to this region, as again the sun is progressively marching इसके ऊपर in the northern direction. आपका जो इंडिया है that becomes progressively and gradually warmer and warmer, and that is why इंडिया जो है आपका धीरे धीरे जो होगा वो it becomes low pressure system. ठीक है. एक ही बार में आप you can not say कि एक ही बार में जो है पूरा का पूरा इंडिया becomes the low pressure system. ठीक है. क्यों? क्योंकि सन का जो जर्नी है वो धीरे धीरे है ऊपर की तरफ. तो इसी तरीके से by 21st of June, this is 21st of June, ये जो सन है that would be vertical to the Tropic of Cancer, and that is why जब आप देखोगे by 21st of June इसके बाद से जो इंडिया है आपका that becomes पूरा का पूरा low pressure system. Why? पूरा का पूरा low pressure system because sun is falling vertical. That means what? Heat is there. When heat is there, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा? जो आपका एयर है that becomes lighter, है ना. तो लो प्रेशर सिस्टम जो है डेवलप होगा इस रीजन में. ठीक है. एंड इफ यू सी कि जो वेस्टर्न साउथ वेस्ट जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, स्पेशली जो आपका राजस्थान वाला रीजन है, दैट बिकम्स वेरी लो प्रेशर, द लोएस्ट प्रेशर. क्यों लोएस्ट प्रेशर? ये वाला जो रीजन है दैट बिकम्स लोएस्ट प्रेशर क्योंकि अभी जो है सन जो है आपका इन द नदर्न हेमिस्फीयर, अगर आप देखोगे पूरा का पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, तो अगल बगल का जो रीजन है दैट बिकम्स वेरी वार्मर, एंड दैट इज व्हाई there would be what? There would be lowest pressure. ठीक है. बट अगर आप देखोगे जो टेपरिंग पार्ट, दिस टेपरिंग पार्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो अभी टेम्परेचर है that would be somewhere around 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. कहाँ पे? कोस्टल रीजन. वाई कोस्टल रीजन में जो टेम्परेचर होगा दैट वुड बी मॉडरेट बिकॉज ऑफ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ
ocean, ठीक है, but in the Delhi, but in the Punjab, but in the northern part of India, जहां पे यूपी, बिहार, इन सब रीजन में अगर आप देखोगे तो देयर वुड बी वेरी वेरी हॉट, द टेम्परेचर बिकम्स टू एक्सट्रीम, ठीक है। एंड जो भी चीज है यहाँ पे, अगर आप कोस्टल रीजन में देखोगे तो कोस्टल रीजन में जो टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर इज वेरी वेरी मॉडरेट, 30 to 35 डिग्री इवन इन द विंटर। आपने देखा था लास्ट क्लास में दैट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट, कि इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, पंजाब एटसेट्रा, यहाँ पे एक्सट्रीम विंटर सीजन, यहाँ पे एक्सट्रीम समर सीजन, ठीक है, बट द टेपरिंग पार्ट, बट द कोस्टल रीजन, व्हाई they have moderating climate? because of moderating effect of, बगल में क्या है आपका सी, दिस इज आपका अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल, ठीक है, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, तो दैट इज व्हाई मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशन, ओके। सो नाउ दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस इज हिमालय, this is Himalaya, and if you see, this is what, this is the cross sectional view of India, जहां पे ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है, this is Indo-Gangetic plain, this is Shivalik, this is middle Himalaya, this is higher Himalaya, ठीक है, this is higher Himalaya, हिमाद्री, and this वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, that is आपका तिब्बत का प्लाटू, because तिब्बत का प्लाटू is at very very higher elevation, that is 4000 5000 elevation पे आपका तिब्बत plateau is there, and this is very very flat region, so insolation is very high, ठीक है। when insolation is very high, that means what, when temperature is बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर सिस्टम, लोएस्ट प्रेशर सिस्टम would be you can find over in the Himalayan region, in the Tibet wala region, sorry, not the high pressure, लो प्रेशर, ठीक है, दिस इज लो प्रेशर, लोएस्ट प्रेशर, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है दैट इज लोएस्ट प्रेशर। बट इन इंडिया ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ पे भी देयर इज स्टिल लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर, बट एज कंपेयर टू इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और जो आपका हिमालयन रीजन है, यहाँ पे लोएस्ट प्रेशर है, बिकॉज सन इज वर्टिकली फॉलिंग ओवर दिस रीजन, ठीक है। नाउ सो अब जो विंड का स्पीड है, विंड का स्पीड दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब क्या कि जो डिफरेंस है प्रेशर का वो कितना ज्यादा है, मोर द प्रेशर ग्रेडियंट मोर वुड बी द स्पीड ऑफ विंड, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा प्रेशर, उतना ही ज्यादा क्या होगा विंड का स्पीड होगा, ठीक है। तो अगर आप इस कंडीशन में देखोगे ड्यूरिंग हॉट समर, तो क्या है कि प्रेशर ग्रेडियंट इज नॉट मच हायर, बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल द प्रेशर ग्रेडियंट इज देयर, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट इज देयर, तो विंड जो है, विंड वुड बी देयर, लेकिन विंड का जो स्पीड है, जो विंड का स्पीड है, दैट वुड बी कंपैरेटिवली स्लोअर देन द साउथ वेस्टर्ली का जो विंड स्पीड है उसका, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, लो प्रेशर सिस्टम, एंड एज यू नो कि आपका दिस इज, ये जो अरेबियन सी है, दिस इज द वाटर बॉडी, एंड वाटर बॉडी आपको पता है कि लैंड एंड सी का जो कॉन्ट्रास्ट है दैट इज क्या, कि लैंड गेट्स हीटेड वेरी क्विकली, एट द सेम टाइम जो आपका वाटर बॉडी है दैट हीट्स अप वेरी स्लोली, ग्रेजुअली, एंड कूल्स ग्रेजुअली और प्रोग्रेसिवली, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इस साइड में हाई प्रेशर शुड बी देयर, एंड दिस यू नो कि जो विंड है दैट अट्रैक्ट्स, जो लो प्रेशर सिस्टम है, लो प्रेशर सिस्टम अट्रैक्ट्स द विंड फ्रॉम हाई प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर एंड विंड। नाउ व्हाट वुड बी देयर, व्हाट अबाउट द प्रेसिपिटेशन,
जो आपका प्रिसिपिटेशन होगा दैट वुड बी वेरी वेरी मॉडरेट, मॉडरेट प्रिसिपिटेशन, एंड इसको हम कहते हैं प्री मॉनसून शावर। ठीक है, अभी जो है साउथ वेस्ट मॉनसून इज नॉट देयर, रादर उससे पहले जो हॉट ड्राई समर है, ठीक है, हॉट ड्राई समर के टाइम पे देयर वुड बी प्री मॉनसून शावर। प्री मॉनसून शावर कहाँ कहाँ पे, सम रीजनल एरियाज, यहाँ पे दिस इज द कर्नाटक एंड केरला का रीजन। तो दैट प्रिसिपिटेशन वुड बी in the form of first is मैंगो शावर, ठीक है, दूसरा है आपका ब्लॉसम सागर, ब्लॉसम शावर, थर्ड इज योर काल बैसाखी। ठीक है, इसी को वी से नॉरवेस्टर, व्हाट वी से नॉरवेस्टर। ठीक है, फोर्थ इज व्हाट, द आपका लू। ठीक है, लू। सो दीज आर द रीजनल विंड ड्यूरिंग द हॉट ड्राई समर सीजन इन द इंडियन रीजन। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड कि मैंगो सावर बिकॉज लो प्रेशर, because pressure gradient is not that much higher, so that the wind speed can be higher, and that is why जो भी बारिश है that is in the form of shower। ठीक है, that is in the form of shower, light rain, and this mango shower जो है that occur in the region of Kerala and Karnataka, and this is very very helpful in early ripening of mangoes in mango growing region। जो केरला और कर्नाटका का जो मैंगो ग्रोइंग रीजन है, जहां पे दिस मैंगो सावर इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन व्हाट, मैंगो राइपनिंग, अर्ली मैंगो राइपनिंग। दूसरा इज द ब्लॉसम शावर, ये सेम चीज है, ठीक है, बस नेम इज डिफरेंस, उसका नोमेनक्लेचर इज डिफरेंस। ठीक है, नाम अलग है। दिस पर्टिकुलर ब्लॉसम शावर इज helping in early blossom of कॉफी फ्लावर। ठीक है, कॉफी। ठीक है, अगर आप कॉफी देखोगे तो कर्नाटका, केरला एंड देन तमिलनाडु। ठीक है, तो कर्नाटका केरला वाला जो रीजन है जहां पे कॉफी जो है, दी कर्नाटका केरला इज अ कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जहां पे दिस ब्लॉसम सावर इज हेल्पिंग इन व्हाट, अर्ली ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफी प्लांट्स। ठीक है, दिस we've done। नेक्स्ट ही इज हमारा क्या है, काल बैसाखी या फिर नॉरवेस्टर। काल बैसाखी या नॉरवेस्टर जो है, दिस इज द लोकल विंड का रिजल्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, से फॉर एग्जाम्पल इन आसाम या फिर वेस्ट बंगाल या फिर बिहार, इन सब रीजन में जो है आपका दैट इज देयर। काल बैसाखी हम कहां कहते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, आसाम बारदोली चीरा, आसाम में क्या है, बारदोली चीरा। वेस्ट बंगाल आपका काल बैसाखी। बिहार में क्या है आपका, आंधी। ठीक है, आंधी। So these are there, and this Kal Baisakhi and Nor'wester is always related to thunderstorm। क्यों thunderstorm, हम देखेंगे कि thunderstorm क्या होता है और how these Kal Baisakhi Nor'wester का phenomena is related to what, thunderstorm। thunderstorm का ही दूसरा नाम हिंदी में भी से आंधी। Again a very local wind, especially in Bihar, UP, Madhya Pradesh, northwestern part of India, in the dry summer season, that is the loo का phenomena, and that loo जो है, that is very very hot, humid or dry। This is humid, no, this is dry।
दिस इज ड्राई विंड, यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है इस टाइम पे। उसके बाद दिस इज वेरी वेरी ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव, एंड विच कैन कॉज व्हाट, विच कैन कॉज sunstroke. And this loo in the month of April, in the month of May, are responsible for taking lives in the area of northwestern part or northern Indo-Gangetic plain. ठीक है? So these are the precipitation that is associated with what? Hot weather season. ठीक है? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले we will discuss the phenomena of what? The phenomena of thunder storm. कि thunder storm क्या है? Thunder storm. ठीक है? Now, so see, थंडरस्टॉर्म इज अ वेरी वेरी लोकल का फेनोमेना। लोकल का जो है दैट इज लोकल विंड, जहां से ये थंडरस्टॉर्म रिलेटेड है। सो एंड इट इज एसोसिएटेड विद एक्सटेंसिव हीटिंग ऑफ द ग्राउंड, extensive heating of the ground, and extensive heating of the ground is dependent on relief feature. ठीक है? अगर मान लो कहीं पे ब्लैक सॉइल है तो आपका जो सरफेस है दैट बिकम्स वेरी वेरी हॉट, बिकॉज जो ब्लैक कलर है वो क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है। तो दैट इज वाई जहां पे ये रिलीफ फीचर, कहीं पे ब्लैक सॉइल है, कहीं पे देयर इज अ जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ही कम है, वेरी वेरी प्लेन है, वेरी वेरी जो आपका जो प्लेन है वो फ्लैट रीजन है। व्हेन द प्लेन इज फ्लैट, अब जब फ्लैट है दैट मीन्स इंसोलेशन जो है, जो हीट है वो डायरेक्टली हीट जो है दैट डायरेक्टली हिट द सरफेस। व्हेन हीट डायरेक्टली हिट द सरफेस तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना? और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ड्यू टू दिस जो यहाँ के जो इस रीजन के जितने भी एयर है दैट बिकम्स व्हाट? वार्मर और लाइटर, लाइटर। ठीक है? दैट बिकम्स लाइटर। व्हेन दिस बिकम्स लाइटर तो कौन सा प्रेशर सिस्टम? लो प्रेशर सिस्टम विल डेवलप। व्हेन लो प्रेशर सिस्टम विल डेवलप देन air will rise up. When then air will rise up in this manner, air will rise up in this manner because this air, ये जो यहाँ पे air है that is very very hot. अब जैसे ही it will you know keep on, जैसे जैसे it will keep on, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो जो heat है that heat will release. ठीक है? एंड जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर विल रिड्यूस एट द रेट ऑफ -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, और हम इसी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट या फिर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। तो एज द हाइट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो भी वार्मर एयर था जैसे जैसे इट विल ऊपर जाएगा इट विल कूल एंड कंडेंस एंड फॉर्म द क्लाउड। ठीक है? फॉर्म द क्लाउड। अब हीट इतना ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा कूलिंग, उतना ज्यादा कूलिंग उतना ज्यादा वहां का जो होगा जो latent heat of vaporization. Further that latent heat of vaporization what will do? They will intensify the low pressure system, and that is why the cloud जो यहाँ पे form होगा that cloud would be in the form of cumulonimbus cloud. कौन सा? cumulonimbus cloud. This cloud is very very वेरी वेरी गार्गेंचुअन, जाइगेंटिक क्लाउड्स, बहुत ही विशाल क्लाउड्स है ये, बहुत ही ह्यूज क्लाउड्स है ये। एंड दिस cumulonimbus cloud is responsible for giving very heavy rainfall in short term, very very heavy rainfall. ठीक है? this particular phenomena, ये जो आप cumulonimbus cloud देख रहे हो, ये cumulonimbus cloud इतना बड़ा है जिसका हाइट इज up to
6 to 18 kilometers up to tropopause, ये इतना ज्यादा बड़ा है, and that is why it blocks the sunlight, that is why it block the sunlight, that is why it blocks the sunlight. And जब ये सनलाइट को ब्लॉक कर देगा तो दैट इज वाई जो नीचे में विजिबिलिटी है, ठीक है, दैट विजिबिलिटी बिकम्स दैट्स लेस, एंड दैट इज वाई नीचे का जो एरिया है ये कैसा दिखेगा आपका, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। इसीलिए नाम है काल। काल मीन्स व्हाट, काल मीन्स ब्लैक, एंड दिस पर्टिकुलर फेनोमेना हैपन इन बैसाख के मंथ में। इंडियन कैलेंडर देखोगे तो बैसाख के टाइम पे, एंड दैट इज व्हाई द नेम इज काल बैसाखी इन द बंगाल के रीजन में, ठीक है। वाई काल बैसाखी नाम समझ में आया, बिकॉज ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का जो हाइट है दैट इज अप टू 6 to 18 किलोमीटर्स अप टू ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज तक ये है। और इतना बड़ा क्लाउड है, इतना गार्गेंचुअन, इतना जाइगेंटिक ये सिस्टम है दैट इट ब्लॉक्स द सनलाइट। व्हेन इट ब्लॉक्स द सनलाइट, जो नीचे का रीजन है दैट बिकम्स, जो विजिबिलिटी है दैट रिड्यूसेस, एंड व्हेन विजिबिलिटी रिड्यूसेस तो एरिया जो है यहाँ का दिखेगा कैसा कैसा, काला। इसीलिए नाम है काल, काल मीन्स ब्लैक, and that this particular phenomena जो है that occur in the Indian calendar बैसाख के टाइम पे, तो इसीलिए इसका नाम इज काल बैसाखी। अंडरस्टैंडिंग दिस, काल बैसाखी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, काल बैसाखी। नाउ डिस्कस द थंडरस्टॉर्म, या फिर इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्थ, जो काल बैसाखी है इसको हम नॉर वेस्टर क्यों कहते हैं, नॉर वेस्टर क्यों कहते हैं, ठीक है। दिस पर्टिकुलर फेनोमेना ऑफ काल बैसाखी, इट इज, यहां पे अगर आप देखोगे, इफ यू कैन सी कि काल बैसाखी इज द फेनोमेना दैट ऑकर, लेट मी, इन द बंगाल के रीजन में, ठीक है, बंगाल के रीजन में, इस रीजन में। एंड एज यू नो कि जो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है दैट इज, यहां पे आपका क्या है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करता है, जो सदर्न ब्रांच है इसका पार्ट, इसका जो सदर्ली ब्रांच है दैट इन्फ्लुएंस द ये वाला काल बैसाखी एंड ड्रैग इट टू द आसाम तक के रीजन में, एंड दैट इज व्हाई, बिकॉज दिस पर्टिकुलर फेनोमेना इज ड्रैग्ड बाय द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि किधर से आ रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस काल बैसाखी इन आसाम के रीजन में, हम उसको क्या कहते हैं, आसाम बंगाल के रीजन में वी से इट नॉर वेस्टर, ठीक है। तो दैट इज व्हाई द नॉर वेस्टर, बिकॉज इट इज ड्रैग्ड बाय द विंड कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न साइड, कहां तक, अप टिल द, आपका जो ये वाला रीजन है बंगाल आसाम का रीजन यहां पे, ठीक है। नाउ मूविंग टू दिस थंडरस्टॉर्म वाला पार्ट, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि as you can see over here कि लो प्रेशर सिस्टम है, टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई, तो टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई, तो अब यहां पे क्या होगा कि एज दिस, सपोज yes, suppose this is the layer, जहां के बाद क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर दैट बिकम्स इन फ्रीजिंग, दैट इज लेसर देन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री से कम है। तो जो भी एयर पार्टिकल्स, जो मॉइस्चर है जो ऊपर जा रहा है, दैट विल कूल एंड कंडेंस, ठीक है, कंडेंस, एंड इट विल फॉर्म द स्मॉल आइस पेलेट्स, ठीक है, आइस पेलेट्स। अब व्हाट इज देयर, यहां पे क्या हो रहा है कि एयर इज राइजिंग अप, कूलिंग, कंडेंसिंग, और यहां पे नीचे में बारिश भी हो रही है ना, नीचे से एयर, नीचे से जो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स है दैट इज कमिंग, एंड
ऊपर से वाटर ड्रॉपलेट्स इज कमिंग ऊपर से, ठीक है, बारिश के फॉर्म में, एंड नीचे से क्या है, एयर पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस। मतलब ऊपर से क्या आ रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स, नीचे से क्या जा रहा है, क्या जा रहा है आपका, एयर पार्टिकल्स, ठीक है। एंड व्हेन दिस आइस पेलेट्स हो गया या फिर जो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स है, व्हेन इसका जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स है, अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट कहते हैं हम इसको, टेक्निकल वर्ड्स। सो जो upward movements and downward movements of ice pellets and water droplets, it आप अगर क्या करोगे, अपने दोनों हाथ को ऊपर नीचे करोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर में ये गर्म हो जाएगा, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेवलप हो रहा है ना। तो सेम वे यहाँ पे व्हाट विल हैपन, यहाँ पे देयर वुड बी द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है। एंड दैट डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ड्यू टू ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ आइस पेलेट्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, जो भी आपका चार्ज पार्टिकल्स है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, दैट विल सेटल एट द यहाँ पे बॉटम पार्ट्स ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, एंड इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज विल सेटल या फिर डेवलप, ठीक है। एंड दिस इंड्यूस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड, पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड, ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी वेरी हाई, ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वेरी वेरी हाई, तो जो एयर का रेजिस्टेंस है, दैट एयर का रेजिस्टेंस बिकम्स ब्रोकन, ये टूट जाएगा, और यू विल सी व्हाट, यू विल सी द फेनोमेना ऑफ लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग एंड थंडर, lightning and thunder. This lightning and thunder, this lightning and thunder can be occur within the cloud or outside the cloud, within the cloud and outside the cloud. Now जो lightning है, अगर थोड़ा सा आप क्वेश्चन कैन बी वेरी वेरी अप्लाइड, अगर आप लाइटनिंग को सोचोगे तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ व्हाट, साउंड, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन कैन बी वेरी मच अप्लाइड, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि यू विल लिसन द थंडर फर्स्ट या फिर यू विल सी लाइटनिंग फर्स्ट। तो आंसर क्या होगा आपका, यू विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटनिंग। क्यों, क्योंकि लाइट का जो स्पीड है दैट इज ग्रेटर देन द साउंड का स्पीड। पहले आप लाइटनिंग देखोगे, उसके बाद आपको क्या होगा, थंडर सुनाई देगा। अंडरस्टैंडिंग दिस, सो दिस इज द फेनोमेना ऑफ आपका क्या, थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म इज रिलेटेड टू व्हाट, थंडर स्टॉर्म इज रिलेटेड टू हैवी रेनफॉल विद हेल स्टॉर्म। अब हेल स्टॉर्म क्या है, हेल स्टॉर्म क्या है, हेल स्टॉर्म क्या है, सी व्हेन जो टेम्परेचर है दैट बिकम्स इन नेगेटिव, ठीक है, जो ड्यू पॉइंट है वो अगर फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, देन जो वाटर ड्रॉपलेट्स है दैट विल कूल एंड कंडेंस एंड इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स आइस पेलेट्स। इसीलिए अगर आप देखोगे जो थंडर स्टॉर्म है दैट इज समटाइम्स रिलेटेड टू हेल स्टॉर्म। जो भी नॉर्थ इंडिया के हैं, आप उनसे पूछोगे तो दे विल टेल यू कि क्या, कि जो इन द मंथ ऑफ अप्रैल में वहां पे क्या है कि थंडरस्टॉर्म है, एंड ड्यू टू थंडरस्टॉर्म स्पेशली इन बिहार एंड यूपी के रीजन में देयर आर वेरी वेरी मच कैजुअलिटीज। वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, कैजुअलिटीज है, डेथ है ड्यू टू लाइटनिंग, ठीक है। समटाइम्स दिस हेलस्टॉर्म इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ इन दोज रीजन, ठीक है। सो हेलस्टॉर्म क्या है, जो आप देखोगे आइस के गोले ऊपर से गिर रहे हैं, ठीक है, आइस के गोले जो हैं जो वो ऊपर से गिर रहे हैं, जिसको हम बर्फबारी तो नहीं कहोगे आप, कि एक आइस पेलेट्स होते हैं, इसका साइज कैन बी वैरी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हेल स्टॉर्म।
Understanding this phenomena of thunderstorm is related to what? Associated with extensive heating of the surface, and this extensive heating of the surface is dependent on the relief feature. Relief feature can be उसका जो soil quality, soil कैटेगरी है, अगर ब्लैक सॉइल है तो हीटिंग ज्यादा है, ठीक है. अगर मान लो कि फॉरेस्ट के पैचेज आर नॉट अवेलेबल, व्हेन फॉरेस्ट के पैचेज आर नॉट अवेलेबल दैट मींस सनलाइट जो है वो डायरेक्टली हिट करेगा ग्राउंड को, एंड ही ये जो आपका टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा, तो लो प्रेशर सिस्टम, व्हेन देयर इज अ लो प्रेशर सिस्टम तो एयर विल राइज अप, when air will rise up it will cool, condense, ठीक है, and resulted into formation of what? Resulted into formation of cumulonimbus cloud. Cumulonimbus cloud क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि एक्सटेंसिव हीटिंग ऑफ द ग्राउंड है. एक्सटेंसिव हीटिंग ऑफ द ग्राउंड, जितना ज्यादा जो ग्राउंड हीट हो रहा है ये उतना ज्यादा ही एयर ऊपर जाएगा, एंड ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगेन ऊपर में हीट है तो ऊपर में भी लो प्रेशर सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड. लो प्रेशर सिस्टम जितना ज्यादा एक्सटेंसिव होगा उतना ही ह्यूज अमाउंट क्या होगा आपका क्लाउड का होगा, है ना. तो दैट इज व्हाई दिस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही जो है दैट इज गार्गेंचुअन, दैट इज बहुत बड़ा है. इसका हाइट इज अप टू कहां तक? इसका हाइट इज अप टू ट्रोपोपॉज 6 किलोमीटर टिल 18 किलोमीटर्स, एंड दिस cumulonimbus cloud is very very dangerous than the 500-600 atom bomb collectively. ठीक है, इतना ज्यादा एनर्जी है इसके अंदर. अंडरस्टैंडिंग दैट, इसीलिए जो आप देखोगे जो 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 जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पे टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होगा, है ना, टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होगा. दैट इज व्हाई पायलट्स अवॉइड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट इन दिस रीजन. अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, नाउ टॉक अबाउट द जो आपका नॉर्वेस्टर या फिर काल बैसाखी है, ठीक है. अब आपको पता है कि जो काल बैसाखी एंड नॉर्वेस्टर आर रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू very heavy rainfall, and this phenomena is related to this phenomena that is associated with which state? आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल, उसके बाद आसाम का रीजन, उसके बाद बिहार का रीजन, एंड दैट इज व्हाई दोज रीजन, आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, दैट इज द राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट. राइस कल्टीवेशन जो है सबसे ज्यादा कहां पे है? वेस्ट बंगाल, ठीक है. नॉट ओनली दिस, उसके बाद जूट कल्टीवेशन. अगर आप जूट कल्टीवेशन में देखोगे तो इंडिया में वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. नॉट ओनली दिस, जो आपका टी है, टी, जूट, राइस, दीज आर द वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, ठीक है. टी जो आप देखोगे दैट इज इन आसाम, है ना, आसाम के रीजन में, एंड टी रिक्वायर्स वेरी हैवी रेनफॉल विद जो यहाँ का सॉइल होना चाहिए दैट सॉइल शुड बी प्रॉपर ड्रेन्ड, मतलब जो पानी है वो एक जगह नहीं रुकना चाहिए, ठीक है. तो दैट इज व्हाई जो टी ग्रोइंग रीजन है, आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हो गया, ये सब किस चीज के लिए है? बिकॉज ऑफ दिस काल बैसाखी या फिर नॉर्वेस्टर. गेटिंग इट? सो दैट इज व्हाई दिस इज द economic importance of Kal Baisakhi and Nor'wester. Although they are harmful, but at the same time they are beneficial. So without understanding this part, you are not able to write the answer. ठीक है, तो क्वेश्चन आप इसको ऐसे पूछ सकते हो कि had the Nor'wester, had the काल बैसाखी नॉट बिन देयर, तो मे बी कि जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, जहां पे देर आर वेरी वेरी हैवी रेनफॉल, तो ये यहाँ पे जो है शायद आप नहीं देख पाते, ठीक है. सो दिस इज द ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस. दिस यू कैन अंडरस्टैंड, दिस यू कैन रिलेट इट इन दिस मैनर, एंड दैट इज व्हाई ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो प्लेन्स ऑफ इंडिया है, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, दैट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? दैट इज कंसीडर्ड एज द फूड बास्केट ऑफ इंडिया. फूड बास्केट ऑफ इंडिया. अब आप इसको
रिलेट करो, अगर ये फूड बास्केट ऑफ इंडिया है, अगर ये फूड बास्केट ऑफ इंडिया नहीं होता तो किस तरीके के नेगेटिव रिपरकशंस कैन बी हैपन। इसको आपको क्या करना है, इंटरलिंक करना है, आपको क्या करना है, आपको रिलेट करना है ना, कनेक्ट करने का जो ये प्रोसेस है यही आपको सीखना है। अब यहां से आप इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, है ना, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो फूड बास्केट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है फूड, ये जो रीजन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर फूड सिक्योरिटी है तो गवर्नमेंट के पास जो है पैसा है, जो मनी है, जो फंड है, वो फंड कैन बी फर्दर फर्दर एक्सपेंड ऑन फिर स्पेंड ऑन कहां पे, ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि क्या, बिल्डिंग ऑफ रोड्स। अब जब बिल्डिंग्स ऑफ रोड्स है मतलब कनेक्टिविटी ग्रो कर रहा है, अब कनेक्टिविटी ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका इकोनॉमी है वो क्या होगा, ग्रो करेगा, ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं भी आपके बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न, यू नीड टू connect the dots, connection the dots is very very important। कि ज्योग्राफी को आप इकोनॉमी से ऐड कर रहे हो, ज्योग्राफी को आप एग्रीकल्चर से ऐड कर रहे हो, है ना, एग्रीकल्चर इज फर्दर जो है मतलब बहुत सारे चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक बार अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया ना तो आप जो है क्वेश्चन यू कैन राइट, अगर आप पढ़ के नहीं भी गए हो, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 20 क्वेश्चंस आर देयर इन यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में तो आई एम assuring you, I am giving you the surety कि you will not be able to write more than 10 क्वेश्चन। जितना भी आपने पढ़ा है उसमें से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन से ज्यादा आपको नहीं आएगा, एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ यूपीएससी, ठीक है। देन हाउ आपका जो रेस्ट है, रेस्ट क्वेश्चन, देन हाउ वुड यू टैकल देम, ठीक है। तो यहीं पे ये सब कनेक्शन ऑफ डॉट्स जो है पिक्चर में आता है और आप जो है उस आंसर को लिख पाते हो, अंडरस्टैंडिंग इट। सो that is why not only in the mains examination but in the prelims जहां पे calculated risk is very very important, और आपको यही चीज सिखाया जाता है कि calculated risk कैसे लेना है, ठीक है। जब डॉट्स बनाना आपको आ जाएगा, जब डॉट्स आपको कनेक्ट करना आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली जो है आंसर को लिख भी पाओगे, और अगर एमसीक्यूज है तो एलिमिनेट करके यू कैन mark the right answer. So hot weather season, that is the summer season। और समर सीजन में क्या है आपका, सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि लास्ट ही क्लास में कि IMD had categorized the Indian monsoon into 4 category, that is cold weather season, hot weather season, cold weather season, hot weather season, ठीक है। तीसरा था आपका मॉनसून सीजन जिसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, और चौथा था आपका नॉर्थ ईस्ट सीजन, जिसमें से हमने कोल्ड वेदर सीजन कर लिया, आज हमने हॉट वेदर सीजन कर लिया। कल की क्लास में वी विल सी साउथ वेस्ट मॉनसून, एंड इफ टाइम अलाउज अस वी विल डेफिनेटली सी द नॉर्थ ईस्ट का मॉनसून, ठीक है, सीजन। सो ड्यूरिंग द हॉट समर, ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन क्या होता है, जो कि मार्च टू मई है, इंडिया एक्सपीरियंसेस वेरी हाई टेम्परेचर्स पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन्स, ठीक है। क्यों ऐसा है, बिकॉज इस टाइम पे जो सन है दैट इज इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज वेल एज इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर के बीच में है, एंड बाय 21st ऑफ जून आपका जो सन है दैट इज वर्टिकल टू किसके, वर्टिकल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड उसके बाद से पूरा का पूरा इंडिया बिकम्स लो प्रेशर सिस्टम, और दैट इज व्हाई हम कल देखेंगे कि पूरा का पूरा इंडिया बिकम्स लो प्रेशर सिस्टम, एंड दैट लो प्रेशर का सिस्टम अट्रैक्ट्स द विंड फ्रॉम द हाई प्रेशर का सिस्टम, और उसकी वजह से क्या क्या होता है वो सारी कहानी हम कल के क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया
टेम्परेचर्स ऑफन सोर अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर आप राजस्थान वाले रीजन में देखोगे जो थार डेजर्ट है, तो जो बीएसएफ के जो जो जवान हैं, ठीक है, समटाइम्स दे कुक द पापड़ ऑन द सैंड। इतना ज्यादा वहां पे क्या है, गर्मी है ना, ऑलवेज आई मीन मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड्स, इतना ज्यादा जो है गर्मी है, making it one of the hottest regions during this period. In contrast, coastal areas such as Mumbai and Chennai remains relatively cooler with temperatures ranging between 30 to 35 degree 30 to ठीक है 30 to 35 डिग्री सी ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, बिकॉज बगल में दोनों साइड क्या है, अरेबियन सी है एज वेल एज बे ऑफ बंगाल है, एंड वहीं पे आप देखोगे इसकी वजह से मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी या फिर ओशन की वजह से क्या है, जो क्लाइमेट है दैट इज नॉट एक्सट्रीम, दैट इज नॉट हार्श, वहां पे क्या है, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इवन इन द विंटर, इवन इन द समर के टाइम पे, है ना। प्रेशर एंड विंड सिस्टम क्या है, ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन अ सिग्निफिकेंट लो प्रेशर एरिया डेवलप्स over northwestern India due to intense heating of the land. This low pressure system plays a crucial role in setting the stage for the southwest monsoon. मैंने आपको अभी बताया कि by 21st of June जब सन इज वर्टिकल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है, पूरा का पूरा इंडिया जो है, दैट बिकम्स लो प्रेशर सिस्टम, एंड दैट लो प्रेशर सिस्टम सेट द स्टेज फॉर साउथ वेस्ट मॉनसून अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट लो प्रेशर सिस्टम जो है दैट अट्रैक्ट्स द विंड फ्रॉम द हाई प्रेशर सिस्टम, क्योंकि अभी जो आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो वहां पे क्या है, विंटर, और विंटर में कैसा प्रेशर सिस्टम, टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है मतलब हाई प्रेशर सिस्टम। ठीक है, दैट वी विल see the story in the next class. ठीक है, to attract moist winds from the Indian Ocean in the month of June. Getting it? Meanwhile, the region experiences hot and dry winds known as लू, एंड लू जो है आपका दैट इज ड्राई विंड। ठीक है, ड्राई विंड, मॉइस्ट विंड नहीं है, और इसीलिए आप देखोगे सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया जहां पे अगर यूपी है, उसके बाद से फॉर एग्जांपल आपका बिहार है, वहां पे क्या है, दिल्ली है, क्या है, द फेनोमेना ऑफ डस्ट स्टॉर्म, क्योंकि एयर इज राइजिंग, और एयर के साथ क्या है, मॉइस्चर नहीं है, तो आपको क्या दिखेगा, बहुत ज्यादा धूल जो है वो दिखेगा, दैट इज द फेनोमेना ऑफ क्या, डस्ट स्टॉर्म। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड दिस इज वेरी ड्राई विंड, नॉट ह्यूमिड नहीं है, यहाँ पे आपको यूपीएससी क्या कर सकता है, फंसा सकता है, ठीक है, कि लू इज द ह्यूमिड, नो, ड्राई विंड है, ये क्या है, ड्राई विंड, नॉट अ ह्यूमिड विंड, वेरी वेरी हॉट, ऑप्रेसिव, एंड दिस कॉजेज सनस्ट्रोक। ठीक है, अफेक्टिंग स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश आल्सो एक्सपीरियंस द दिस लू। ठीक है, उसके बाद जो आपका हॉट वेदर सीजन में क्या है, प्रिसिपिटेशन। ठीक है, प्रिसिपिटेशन मैंने डिस्कस किया, मैंगो शावर, अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो इन द मैंगो ग्रोइंग रीजन, जो कि कहां पे है, केरला, कर्नाटका, ब्लोशन शावर, ठीक है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जहां पे क्या है, कॉफी, ये सब कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी दिस ब्लॉसम शावर इज हेल्पिंग इन ब्लॉसमिंग द कॉफी फ्लावर। काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर, और इसी को हम थंडरस्टॉर्म भी कहते हैं। वे अंडरस्टैंड की थंडरस्टॉर्म का मैकेनिज्म क्या है, एंड चेरी ब्लॉसम रेन्स, इसके बाद आपका एक और है दैट इज लू। ठीक है, लू भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वी हैव इज थंडरस्टॉर्म।
थंडरस्टॉर्म क्या है? दिस इज ए लोकल वेदर फेनोमेना, है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय थंडर, लाइटनिंग, heavy rain, and sometimes gusty winds and hail caused by strong upward movement या updraft movement of warm moist air. ठीक है, तो this thunderstorm is related to heavy rainfall, lightning, thunderstorm and not the thunderstorm, hailstorm. ठीक है, अब थंडरस्टॉर्म का मैकेनिज्म यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि क्या है. दिस इज associated with what? extensive heating of land. ठीक है, during the day the land heats up significantly, warming the air near the ground, right? This warm moist air rises rapidly into the atmosphere through a process known as convection. As the air ascends, it cools and condenses, फॉर्मिंग टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. एंड यू नो कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का हाइट इज फ्रॉम 6 किलोमीटर, फ्रॉम 2 किलोमीटर टू द ग्राउंड टू द 18 किलोमीटर. गार्गेंचुअन सिस्टम, बहुत ही जाइगेंटिक सिस्टम है. ठीक है, विद इन दीज क्लाउड्स कोलाइडिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल्स generate positive and negative electrical charges which eventually lead to the discharge of lightning. ठीक है, the sudden expansion of air caused by lightning produces the sound of thunder. तो पहले आप क्या देखोगे? पहले you will see the lightning, ठीक है, and उसके बाद you will listen the thunder. क्यों? क्योंकि जो लाइट का स्पीड है that is more than the sound का स्पीड. Getting it? The sudden expansion, ये तो हो गया हमारा. Thunderstorm are usually accompanied by heavy rainfall, है ना, and in some cases gusty winds or hail depending on the intensity of the storm. Hailstorm भी जो है यहाँ पे है. Hailstorm मतलब क्या कि जो वो बर्फ का गोला आप देखते हो आकाश से गिरते हुए, that is the phenomena of what? That is the phenomena of hailstorm. And hailstorm जो है that depends on dew point. अगर dew point जो है, the temperature जो है, अगर freezing point से नीचे है तो जो water droplets है, that water droplets cools, condense and form ice pellets. ठीक है, and this is the mechanism, you can revise it. ये आपका पूरा का पूरा mechanism in short में लिखा हुआ है ना. उसके बाद हमारा है lightning के बारे में. Lightning caused by accumulation of opposite charges within a cloud or between a cloud and the ground. ठीक है, between the cloud and the ground. Inside large cumulonimbus clouds, strong air currents carry water droplets and ice pellets upward and downward. मतलब ice pellets जो है that is coming down, ऊपर से वाटर वेपर इज गोइंग, और मतलब अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट मूवमेंट ऑफ किस चीज का? वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, एयर पार्टिकल्स एज वेल एज द आइस पार्टिकल्स is responsible for separation of charge. This result in separation of charge with positive charges accumulating at the top of the clouds and negative charges at the bottom. ठीक है, when the differences in electrical potential between becomes large enough, the cloud releases energy in the form of flash of lightning which may occur within the cloud, between the clouds or between the clouds and the earth's surface. ठीक है, the rapid heating and expansion of air surrounding the lightning bolt cause a shock wave. ठीक है, and this is resulting into death of many people in the बिहार यूपी के रीजन में, स्पेशली इन अप्रैल एंड मई के मंथ में. ठीक है, सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट योर हॉट वेदर सीजन. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कोल्ड वेदर सीजन के बारे में, जहां पे वी डिस्कस्ड द बिग पिक्चर ऑफ इट. यहाँ पे हमने हॉट वेदर सीजन के बारे में सारा का सारा कहानी अभी करा. एंड द नेक्स्ट क्लास में वी विल सी अबाउट द साउथ वेस्ट
मॉनसून के बारे में, ठीक है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे बाय 21 ऑफ जून, जहां पे इंटायर इंडिया जो है दैट बिकम्स द लो प्रेशर सिस्टम, और दैट लो प्रेशर सिस्टम क्या करेगा, अट्रैक्ट द विंड फ्रॉम हाई प्रेशर सिस्टम। सदर्न हेमिस्फीयर आपका पूरा का पूरा क्या होगा अभी, हाई प्रेशर सिस्टम, बिकॉज विंटर है वहां पे, और विंटर है तो कौन सा सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट हॉट वेदर सीजन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, एंड वहां पे वी विल डिस्कस द ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो टिल देन, थैंक यू।